Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on cost of capital. So we will discuss determination of overall cost of capital with book value weights and market value weights. So let us see data given in this scenario. So we are given Akash Health Limited is a pharma company. It has a flowing capital structure for the current financial year ending on 31st March. So capital structure is given at a book value rupees are in lakhs. Equity share at the rate of rupees 100 each, 800 lakhs, 9% cumulative preference shares of rupees 100 each, 200 lakhs, 11% debentures of rupees 100 each, rupees 600 lakhs, retained earnings are 400 lakhs. यानी कि गिवन करंट मार्केट प्राइस होगा कंपनी 11% डिबेंचर इज रुपीज 110, 9% प्रेफरेंस शेयर इज रुपीज 120 एंड इक्विटी शेयर इज रुपीज 200. So this is market value. For the last year, the company had paid equity dividend 25% and its dividend is likely to grow 5% every year. Corporate tax rate is 30% and shareholders' personal income tax rate is 20%. Then we have different MCQs. Like we have to calculate number one, cost of debt, cost of preference share, cost of equity, cost of retained earnings. Then overall cost of capital of the company on book value weights and on market value weights. So start करके हैं बंदे में. Number one, we have to determine cost of debt of a company. So MCQ number one, we have to determine cost of debt. तो उसका ये फार्मूला बन जाएगा cost of debt is KG is equal to interest and this is made after tax upon price of debt is how much. इसमें देखो redemption value mention नहीं की है, life mention नहीं की है, इसमें किसी perpetual divided by net issue price times 100. नेट इशू प्राइस हो सकता है या करंट मार्केट प्राइस हो सकता है. तो दिस इज आल्सो गिनोटली है कि पी ओनली. तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% ऑन रुपीज 100 एंड दिस इज मेड आफ्टर टैक्स. डिबेंचर इज 110 into 100. So this will be cost of debt. So this is 11 into 0.7 so divided by 110 into 100. So this is 7%. So now you can see which option is correct. Answer is option B is correct. So then we have second MCQ. We have to calculate cost of preference share of the company. So next आपको calculate करनी है cost of preference share which is denoted by KP. So its formula is how much is preference dividend. So this will be PG and tax is not considered upon current price of preference share into 100. तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखो आपको मेंशन किया है किसी 9% को कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 109 डिविडेंड करंट प्राइस आपको दिया है 120 into 100. सो दिस विल बी अवर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज 900 अपॉन 120. 7.5% is our cost of preference share. So you can see which option is correct. So answer is option number C is correct. So next we have third MCQ. We have to determine calculate cost of equity of the company. तो थर्ड MCQ है आपको डिटरमिन करनी है cost of equity. तो इसका फार्मूला बन जाएगा cost of equity इज व्हाट इज करंट डिविडेंड और लास्ट ईयर डिविडेंड कितना था आपका इनटू 1 प्लस ग्रोथ कितनी है डिविडेंड्स में अपॉन करंट प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ. तो आप देखेंगे लास्ट डिविडेंड आपको मेंशन किया है कंपनी एक पेड डिविडेंड ऑफ 25%. तो डिविडेंड की जब परसेंटेज की होती है ये हम लेते हैं फेस वैल्यू के ऊपर. फेस वैल्यू है शेयर की 100 इंटू 25%, जिसे 25 रुपीज. फ्यूचर में आपको ग्रोथ होगी 5% जिसे 1.05 और करंट प्राइस दिया है शेयर का 200 प्लस ग्रोथ इज 0.05. So this will be our cost of equity. So 25 plus 5%. So divided by 200 plus 0.05. So this is 18.125%. So now you can see which option is correct. So answer is option B is correct. Next we have a fourth MCQ. We have to compute cost of retained earnings of the company. तो रिटेन अर्निंग्स में देखिए व्हाट विल बी फार्मूला कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR. फार्मूला ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 माइनस परसेंटेज FOTF लोकेशन कॉस्ट या जो ब्रोकरेज कॉस्ट है आपकी इनटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट इफ इट इज गिवन.
उस केस में सिर्फ आपको पर्सनल टैक्स रेट दिया है शेयर होल्डर का 20% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपकी 18.125 इंटू 1 माइनस 0.220, तो ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, so this is coming 14.5%. So now you can see which answer is correct. This is our option A is correct. So next we have fifth MCQ. We have to compute a weighted average cost of capital of a company on the basis of book value weights. देखो इसका हमने एक टेबल ड्रॉ कर दिया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बेसिस बुक वैल्यू वेट्स। कैपिटल का सोर्स है आपके पास डिबेंचर्स हैं 11%, 9%, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। बुक वैल्यू देखो आपको मेंशन किया है रुपीज लैक्स में, डिबेंचर की है 600 लैक्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसे जी 200, यानी इक्विटी गिवन 800 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स हैं आपकी 400, तो टोटल एज 2000। तो इसके बेस पर आपके वेट्स आ जाएंगे 600 अपॉन 2000, वेट्स हैं आपके 0.3, 0.1, इक्विटी वेट 0.4 एंड 0.2। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट की थी, डिबेंचर से देखो आपने कैलकुलेट की है 7%, यानी प्रेफरेंस शेयर 7.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बार 18.125 एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से 14.5%। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सो व्हाट इज फार्मूला ऑफ दिस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ, जिसे के इंटू डब्ल्यू, एक से समेशन, तो यही शो कर रखे हैं दिस इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समेशन ऑफ के इंटू डब्ल्यू। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस, 7 इंटू 0.3 2.1 प्लस 7.5 टाइम्स 0.1, यानी कि 18.125 टाइम्स 0.4 and 14.5 times 0.2. So this is coming 13% overall cost of capital. Now you can see which option is correct. So answer is option B is correct. So next we have 6th MCQ. So now we have to compute weighted average cost of capital of a company on basis of market value weights. तो पहले हम कैलकुलेट करके हैं, टेबल सेम ही है अब आपका, तो सोर्सिंग ऑफ कैपिटल सेम है 11% डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, लेटेस्ट राइट मार्केट वैल्यू। तो अब देखिए डिबेंचर की आपको बुक वैल्यू दी है 600, उसको डिवाइड करो 100 से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 6 लाख और उसका मार्केट प्राइस है 110, तो टोटल मार्केट वैल्यू विल बी 660 लैक्स। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर की आपकी टोटल बुक वैल्यू दी है 200 लाख, उसको 100 से डिवाइड कीजिए, दिस विल बी नंबर ऑफ शेयर 2 लैक्स इनको प्राइस है अब इसका 120, तो दिस विल बी 240 लैक्स। और इक्विटी की जो वैल्यू होती है ये पहले कंबाइंड आएगी आपकी, कंबाइंड वैल्यू देखते हैं, फिर उसको हम दोनों में स्प्लिट कर देंगे। तो इक्विटी की वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 800 लैक्स, बुक वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100 8 लाख, और इसका मार्केट प्राइस है 200, इट मीन टोटल वैल्यू है 1600, तो ये वैल्यू है आपकी मार्केट वैल्यू 1600 लैक्स। बट आपकी कॉस्ट टू इक्विटी, कॉस्ट टू रिटेनिंग यानी डिफरेंट है, तो इसको फिर हमें अपोर्शन करना पड़ेगा इनकी बुक वैल्यू की रेशो में। बुक वैल्यू देखो दी है इक्विटी की 800, रिटेनिंग अर्निंग से 400, तो इसकी रेशो बन जाएगी आपके 800:400, मीन्स 2:1 में आप इसको स्प्लिट कर लीजिए टोटल मार्केट वैल्यू को। तो जिसे 1600 डिवाइडेड बाई 3 533 इक्विटी की आ जाएगी, 533 ये आपकी रिटेनिंग अर्निंग्स की वैल्यू आ जाएगी, एंड इनटू 2 इक्विटी की आ जाएगी 1067। नाउ दिस विल बी अवर टोटल मार्केट वैल्यू। So total market value, let us see how much it is, 660 plus 240 plus 1600, so total is 2500 lakhs। अब इसके बेस पर आपके वेट्स आ जाएंगे, जैसे 660 डिवाइडेड बाई 2500 वेट is 0.264, so 240 into 2500, so 0.096, so 1067 divided by 2500, this is 0.427, so 533 divided by 2500, 0.213। So now we can write cost of capital of each source. Cost of capital आपकी सेम ही है, नंबर 1 है cost of debt, so this was 7%, cost of preference 7.5%, cost of equity 18.125,
and cost of retained earnings is 14.5%. So what is the overall cost of capital? So KO, which is also called weighted average cost of capital, is cost into weight and it's a summation. So summation of weight is always 1 and what is the overall cost of capital? तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे वेट से, तो दिस विल बी 7 इंटू 0.264 यानी कि 7.5 टाइम्स 0.096 यानी कि 18.125 टाइम्स 0.427 एंड 14.5 टाइम्स 0.213. So this is coming 13.40 396 तो कर सकते हैं. दिस इज कमिंग 13.40% is overall cost of capital. Now you can see which option is correct. Answer is option D is correct. So in this lecture we discussed a case scenario based on overall cost of capital. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.